Thank you, Dr. Sujata. Good morning to all of you. I also welcome you for this patent facilitation unit session on my experiences of patenting my innovation. Dipankar, as Dr. Sujata has told you, is one of the innovator student of IGNOU, and he has got his innovation patented. And we know many of our students are in the process or are planning to get their ideas or innovations patented, and they are keen to know the process of that. So instead of calling a person who has theoretical knowledge, we thought we should invite a person who has actually gone through this process. And Dipankar has gone through this process of patenting. That's why his journey, his experience, and what are different kind of steps and hurdles, problems in the process. He will be the, I think, the best person to share with you. And I'm sure many of you must be having such kind of innovative things in your mind. You may like to get your things patented. So that way, this session is going to be very useful to all of you. We have been getting mail from our students to support them, to facilitate them in getting their innovations patented. That's why this patent facilitation unit at NCID IGNOU was created. This PFU not only creates kind of awareness about the patent and IPR issues, but we guide you, we support you how to go ahead for that purpose. So I would like to suggest you, advise you that after this session, whosoever is having some innovative thing in their mind or have done something and want to get their innovation patented, do contact us. Patent facilitation unit will certainly help you, guide you in getting your patent done. And today's experience will tell you how to go about, how to go further in that. So without taking much time, I think it will be good to listen to Dipankar today. So thank you very much, and keep interacting. Ask your questions, whatever is coming to your mind at the end of this session. So thank you very much, Dr. Sujata. Thank you, Dr. Sharma. Thank you, And sir. now we are eagerly awaiting to listen to Dipankar. So, Dipankar, you may please take over. Thank you, Sujata ma'am and Dr. Opish, Director IGNOU, inviting for me. Sir, Hindi is comfortable, ma'am? Yes, Dipankar, Hindi is very much okay. तो सभी को नमस्ते। मेरा नाम दीपांकर दास, मैं इग्नो का स्टूडेंट हूँ, मैं एक इनोवेटर भी हूँ। तो मैं अपना स्टार्टिंग से मैं अपना जर्नी इनोवेशन का बारे में, मैं अपना फैमिली के बारे में थोड़ा बताऊंगा आपको, और जो इनोवेशन मैंने कैसे किया, कौन सा प्रॉब्लम मैंने सॉल्व किया, देन पैटर्न मैंने कैसे अप्लाई किया, सारा जर्नी ये सेशन में आपको बताऊंगा मैं। तो मैं नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान में रहता हूँ, जो पूरा विलेज एरिया है। मैं एकदम मिडिल फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मम्मी पापा दोनों फार्मर ही है। तो फादर का रिसेंटली लास्ट हम लोग बात किया था आपसे, फादर का रिसेंटली डेथ हुआ था। तो अभी घर का थोड़ा सा माहौल ठीक है। देन मैंने मैडम को ठीक है, अभी तो सब ठीक है अभी। तो मेरा इनोवेशन जर्नी मैं बचपन से कर रहा हूँ। क्लास 5 से मैं इनोवेशन बनाना स्टार्ट किया। बचपन से मतलब छोटा, जब छोटे थे क्लास 1-2 में, तब मिट्टी से बनाते थे, ऐसी नॉर्मल लकड़ी से। देन धीरे धीरे उसका एडवांस मैं करते रहा, एक्सपीरियंस करते करते एक्सपीरियंस मिल जाता कि कैसे करना है, कैसे ढूंढना है इनोवेशंस को, कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करना। देन मैंने क्लास 5 से बेस्ट मतलब जब ऐसे प्रैक्टिकल, तब डेमो ऐसी डेट मॉडल था। देन प्रैक्टिकल में क्लास 5 से स्टार्ट किया मॉडल बनाना। तो ऐसे में करते करते जब स्कूल के टाइम में था, एग्जीबिशन होता था स्कूल टाइम में, तो मैं स्कूल टाइम से स्टार्ट किया हूँ। देन मैं स्कूल में काफ़ी इनोवेशन किया हूँ क्लास 12 तक। 50+ मैंने इनोवेशन अभी तक किया हूँ, जिसमें भी 4 पैटर्न ऑलरेडी मिला है। अभी फिलहाल एक ही है मेरे पास, देन 2 और 3 जो है वो अप्लाई करके रखा हूँ। एंड फिर मैंने 2008 से आपका जब मैंने क्लास 8 में था, तब मैं एक इनोवेशन बनाया था सुनामी अलार्म करके। देन मुझे लगा कि नहीं, अभी और भी बेटर कर सकता हूँ, कि काफ़ी प्रॉब्लम मुझे दिखा। देन मैंने 2015 में एक प्रोजेक्ट बनाया सोलर थ्रेशर करके।
ऐसी काफ़ी मॉडल बनाया जिसमें मैं फेलियर था, सक्सेसफुल नहीं हुआ था। मैं कॉम्पिटिशन में जब जाता था, तब मुझे अवार्ड नहीं मिलता था, रो के घर आ जाता। बट मैंने हार नहीं माना कि नहीं, भगवान ने मुझे ये चीज़ दिया है तो कुछ ना कुछ तो बेटर दिया है। तो देन मैंने 2015 में एक सोलर थ्रेशर इन्वेंट किया जिसमें मैंने ये प्रॉब्लम अगर मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ कि मेरा मम्मी जो ना बताया कि फार्मर है, तो एक दिन मैं ऐसी मम्मी का साथ ऐसी नॉर्मल जो दाल खेती होते हैं अंडमान में, तो दाल दाल खेती में मैं गया था, तो देख रहा था कि कैसे उठाते हैं दाल को, कैसे थ्रेशिंग करते हैं। फिर मुझे मुझे भी लगा कि इसको मतलब कैसे उठाते हैं, क्योंकि हम लोग बचपन छोटा थे तब पता नहीं था। फिर एक दिन मम्मी घर आई, घर आके बोल रहे कि हाथ छिल गया। तो दाल जब जो दाल का पेड़ होता है वो बहुत प्लांट होते हैं, बहुत सख्त होता है, तो जब हाथ से उठाते हैं वो हाथ छिल जाते हैं, खून निकालते हैं। फिर मैंने ऑब्जर्व किया कि क्यों हो रहा है, तो फिर मम्मी के साथ मैंने गया, फिर देखा कि दाल को जो दाल होता है उसको हाथ से उठाना पड़ता है और थ्रेशिंग भी करने में काफ़ी दिक्कत होता है। फिर मैंने इसका पीछे लगा कि मम्मी-पापा अगर मेरे हम लोग के लिए कुछ कर रहे हैं, तो मेरा एक ज़िम्मेदारी है एज़ अ सन, मैं उनके लिए कुछ करूँ। भले पैसा से मैं सपोर्ट नहीं कर पा रहा, बट मैं अपना अंदर जो मुझे भगवान ने दिया है, उससे मैं कुछ हेल्प कर पाऊँ। फिर मैंने एक सोलर थ्रेशर एक डिज़ाइन किया मशीन 2014 में। देन 2015 में मैं नेशनल लेवल में पार्टिसिपेट किया। एनआईएफ नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन करके एक संस्था है जो गुजरात में है। तो उन्होंने उनका पास मैंने अप्लाई किया। देन 2015 में ही दिसंबर 15 को नवंबर 15 को मुझे वहाँ से कॉल आया था कि आपका जो इनोवेशन है उसका बारे में हम लोग जानना है। फिर मैंने सारा चीज़ उनको बताया कि मेरा जो इनोवेशन ये टोटली सोलर से चलता है, डीजल नहीं पेट्रोल, क्योंकि अंडमान में काफ़ी धूप, यहाँ पे बारिश और धूप का कोई पता नहीं चलता। तो मैंने फोकस की कि उसको सोलर बेस बनाया जाए। फिर मैंने सोलर बेस उसको मशीन को बनाया। तो डेमो मॉडल था लेकिन वर्किंग मॉडल था, काफ़ी 2 मीटर तक उसका लेंथ था। फिर मैंने 2000 फे वही एनएफ में अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद उनको मेरा जो मशीन था उनको पसंद आया कि आपका जो मशीन हम लोग को पसंद आया और यहाँ के जो साइंटिस्ट हैं उनको भी पसंद आया। फिर मैंने उन्होंने फ़ोन किया कि आपको हम लोग गुजरात बुलाना चाहते हैं एज़ ए इनोवेटर, और एज़ ए हम लोग यहाँ पे इग्नाइट करके अवार्ड होता था, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इग्नाइट अवार्ड। उनसे मुझे एक अवार्ड मिला 2015 में। फिर वहाँ से मेरा जर्नी स्टार्ट की, नहीं अभी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि मुझे जो जहाँ पे मिलना था, जहाँ मुझे बेसिक चीज़ चाहिए कि कैसे गाइडेंस चाहिए, वो मुझे मिल गया था। देन मैं धीरे-धीरे उनका साथ कनेक्ट होते रहा और उनका साथ इनोवेशन करते रहा। फिर 2015 जब वो अवार्ड मिला मुझे, देन वो उनका द्वारा वो पैटेंट फाइल हुआ। फिर पैटर्न का काफ़ी मुझे रिसेंटली 2024 में मुझे फाइल मिला, हार्ड कॉपी पैटर्न का। देन पैटर्न, क्योंकि मेरा प्रोजेक्ट डिज़ाइन नहीं था, मेरा प्रैक्टिकल था, तो मेरा एज़ ए प्रोडक्ट में पैटर्न हुआ। कि पैटर्न भी अलग-अलग टाइप का होता है, डिज़ाइन पैटर्न होता है, प्रोडक्ट पैटर्न होता है। तो मुझे प्रोडक्ट पैटर्न में दिया गया है, क्योंकि डिज़ाइन अगर आप डिज़ाइन देना चाहते हैं तो उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं कि आपका पास डिज़ाइन है, आइडिया है कि मुझे ऐसा बनाना है, क्या अलग है। तो आप देखोगे कि सोलर थ्रेशर हर जगह है। आप ये गूगल में सर्च मारेंगे तो सोलर थ्रेशर मतलब हज़ारों मशीन है, डिफरेंट टाइप का है, बट मेरा जो मशीन है वो सोलर बेस है। इसीलिए क्योंकि अलग होना चाहिए। पैटर्न का रूल है कि आपका अगर मॉडल है या आपके पास आइडिया है, अभी जो फिलहाल मार्केट में है उससे क्या अलग है, क्या अलग हो सकता है, वो बेसिस में आपको पैटर्न फाइल किया जाता है। तो मेरा जो है टोटली ये सोलर बेस है। और नॉर्मल जो मशीन होता है, आप थ्रेशिंग मशीन देखेंगे कि उसमें 5 लाख से 6 लाख, 10 लाख तक भी होता है। तो मेरा जो मशीन है वो 80,000 में बन गया था। तो ये जो छोटे आकार का जो किसान है, जो इतना अफोर्ड नहीं कर पाते, जो महँगा जो मशीन वगैरह है, तो उनके लिए ये। आप गूगल में देखिएगा कि दीपांकर दास करके सोलर थ्रेशर, तो उसमें देखेंगे कि वो मशीन अवेलेबल है गूगल में। तो अभी फ़िलहाल मशीन का अपडेट अगर मैं बताऊँ कि गुजरात में है, एनआईएफ में है, तो मैंने 2022 में उसको टेस्टिंग किया था। एग्रीकल्चर का है कि उसको रिस्क ज़्यादा नहीं लेते हैं। तो अभी सीज़न ऑफ है दाल का और गेहूँ का, उसमें क्या है कि गा दाल से गेहूँ तक वो थ्रेशिंग करेगा बाय सोलर से। तो ये है। और अगर मैं अपना अवार्ड्स का बारे में बताऊँ, मैं कहाँ-कहाँ पार्टिसिपेट किया हूँ। मुझे 2 बार प्रेसिडेंट से अवार्ड मिला था ये इनोवेशन के लिए, और
जब मुझे 2018 में मुझे फिर से इन्हें से कॉल किया कि आपके पास पासपोर्ट है, मैं बोला हाँ, मैंने जस्ट पासपोर्ट बनाया था। फिर उन्होंने बोला ठीक है, हम लोग इंडिया से टोटल 5 स्टूडेंट को लेके जाएंगे एशियन कंपटीशन के लिए, जो जहाँ पे इंडोनेशिया में मैंने गया था। तो वहाँ पे एशियन कंट्री थे जिसमें काफ़ी बच्चे आए थे पार्टिसिपेट के लिए, तो वहाँ पे मैं पार्टिसिपेट किया था मेरा इनोवेशन को ही। तो वहाँ पे सेकंड प्राइज मिला ऑल ओवर एशियन में। तो ये मेरे लिए अच्छा अचीवमेंट था। देन 2019 में फिर मैं यहाँ पे आया हूँ। फिर मैंने एज ए 1 वीक ऐसे मैं राष्ट्रीय भवन का गेस्ट था एज ए राष्ट्रीय भवन में। देन मैंने अभी रिसेंटली एक इनोवेशन किया हूँ जिसमें वाटर पॉट कैरियर करके है, आप देख सकते हैं। मैं गूगल में भी देख सकते हैं। तो आप देखेंगे कि गांव में छोटा छोटा इनोवेशन ये है कि मुझे बहुत बड़ा करना है, रॉकेट बनाना है, प्लेन बनाना है, ये अच्छा बड़ा बड़ा गाड़ी नहीं। अब छोटे छोटे भी कुछ ऐसी भी आपका अंदर इनोवेटिव थिंकिंग या इनोवेशन नॉलेज हो कि क्रिएटिविटी का, तो आप छोटे छोटा चीज भी आप इनोवेशन कर सकते हैं। जरूरत नहीं कि आपको बहुत बड़ा इनोवेशन करना है, प्लेन बनाना है, मुझे रॉकेट का ये फ्यूल ये करना है, वो नहीं। आप छोटा छोटा दिक्कत भी देख सकते हैं कि गांव में काफी प्रॉब्लम है। और इंडिया ऐसा एक कंट्री है जहाँ पे ग्रास रूट इनोवेशन का ऊपर काम किया जाता है। बाकी आप कंट्री में नहीं देखेंगे कि ग्रास रूट इनोवेशन। तो ग्रास रूट इनोवेशन क्या है, जो गांव के जो इनोवेशन है, वो जो गांव के जो प्रॉब्लम है उसको कैसे हम लोग एज ए प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, या सोल्यूशन में या कोई मशीन्स पे काफी प्रॉब्लम देखे होंगे गाँव में। तो जैसे मैंने बताया कि वाटर पॉट के लिए, तो आप गांव में देखे होंगे कि अभी भी गांव में जो काफी दूर पानी लेके जाना पड़ता, 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर पानी अभी तक जो नानी है या मम्मी है, तो एक छोटा घड़ा होता पानी का, वो घड़ा कम से कम 15 लीटर 10-20 लीटर होता है। तो देखे होंगे कि कितना दिक्कत होता है उनको एक 10 लीटर मतलब घड़ा लेने के लिए पानी का। तो मैंने ये अपना फैमिली में देखा हूँ कि मेरा मम्मी जो है हर दिन 5 किलोमीटर जाना और 5 किलोमीटर आना पानी लेने। तो मम्मी एक दिन मुझे बोल रही कि मेरा कमर दर्द हो रहा है। तो मैंने बोला क्यों? फिर बोलता पता नहीं, आज पानी लेने गया था इसलिए शायद ज्यादा वेट हो गया। फिर मैंने देखा है कि मम्मी का जो घड़ा है 20 लीटर का घड़ा है, जो कमर में लेता है। आप देखोगे गाँव में सिर में या कमर में लेता है। तो कमर इसीलिए क्योंकि जो 20 लीटर, आप सोचिए कि 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर जाना और 5 किलोमीटर आना 10 किलोमीटर, उनको कितना दिक्कत होता होगा। तो फिर मैंने सोचा कि कुछ ऐसा डिवाइस बनाया जिसमें जो वेट है वो वेट उनका कमर में ना आए। फिर मैंने एक वाटर पॉट कैरियर बनाया जिसमें जो वाटर जो वेट है वो बॉडी में फैल जाए कि आपको पता ही नहीं चलेगा। ऐसे भी काफी इनोवेशंस मैंने बनाया, तो जो छोटा छोटा इनोवेशन बट यूजफुल है। तो मैंने अभी अपना एक इनोवेशन स्कूल ओपन किया हूँ, आविष्कार एकेडमी करके, और एक अंडमान फर्स्ट ब्रादर इनोवेटिव स्कूल करके, जिसमें हम लोग गांव के जो बच्चे हैं, जो शहर के बच्चे हैं, उनको साथ एक साथ करके हम लोग इनोवेशन पे काम करते हैं। जिसमें हम लोग काफी 11-12 टॉपिक के ऊपर हम लोग काम करते हैं। इनोवेशन हो गया, कैसे आपको इनोवेशन ढूंढना है, उसको कैसे सॉल्व करना है, कैसे डिजाइन बनाना है, ऐसे इन्वायरमेंट का ऊपर, इको फ्रेंडली जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनका ऊपर हम लोग बच्चे लोगों को सिखाते हैं। तो आप हम लोग यूट्यूब में भी जा सकते हैं, ब्रदर्स इनोवेटिव स्कूल करके, उसमें है काफी हम लोग जो इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जो हम लोग फेंक देते हैं वो सब उसको कैसे रिसाइकिल करके रीयूज करके हम लोग प्रोडक्ट बनाते हैं। इनोवेशंस भी काफी ऐसे इनोवेशंस है जिसमें हम लोग वेस्ट फेंक देते हैं, उसको कलेक्ट करके बच्चे लोग को सिखा के उसका द्वारा हम लोग इनोवेशंस भी करते हैं। तो ये फिलहाल हम लोग अभी अंडमान में, ये डिगलीपुर में हम लोग कर रहे हैं कि प्लान है कि ये साउथ में हम लोग नेक्स्ट प्लान साउथ में करने के लिए, क्योंकि ये जो नॉर्थ है ये पूरा विलेज एरिया है। यहाँ के जो सब गांव के बच्चे हैं, तो गांव में काफी दिक्कत है, मतलब काफी प्रॉब्लम है छोटा छोटा चीज में। देखे होंगे कि मेरा और एक इनोवेशन है, अब बचपन में अगर जब छोटे थे तो हम लोग मम्मी या पापा उंगली पकड़ के हम लोग लिखाते थे, उंगली पकड़ के। तो हम लोग उंगली जो है बहुत सॉफ्टनेस होते हैं या सेंसिटिव होते हैं कि बहुत दर्द करते हैं। बचपन में हम लोग बोल भी नहीं पाते थे मम्मी पापा को कि दर्द कर रहे हैं। फिर मैंने एक छोटा सा इनोवेशन किया पेंसिल होल्डर करके। उसका क्या है कि बच्चा जो छोटे बच्चे जो खुद ब खुद लिख सकते हैं, जरूरत नहीं है कि कोई पेरेंट्स उसको उंगली पकड़ के लिखाए, वो खुद ब खुद लिख सकते हैं। तो अभी फिलहाल हम लोग को घर पे या हम लोग स्कूल में, अभी मेरा घर में ही स्कूल है अपना, अभी तक हम लोग बनाए नहीं, तो घर में हम लोग स्कूल को चला रहे हैं। तो अभी जो स्कूल के बच्चे हैं, प्राइमरी सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी के बच्चे हैं, जो
हर एवरी मंथ या एवरी वीक हम लोग घर आते हैं विजिट करने, मेरा इनोवेशंस को देखने के लिए। हम लोग कैसे क्लास कराते हैं, वो क्लास लेक्चर मैं देता हूँ, देन जो मेरा अचीवमेंट वो देखते हैं। तो इससे क्या होता है कि बच्चे लोग को मोटिवेट और भी मोटिवेट होते हैं, इससे और भी मोटिवेशन होता है कि नहीं भैया ने किया कि मुझे भी करना चाहिए, मैं भी कुछ कर सकता हूँ। तो इसके लिए बच्चे लोग या टीचर्स, यहाँ के अच्छे टीचर्स है कि बच्चे लोग लेके जाते कि कहाँ पे अभी नया एजुकेशन पॉलिसी में कि एजुकेशन टूर होना चाहिए, तो टूर के हिसाब से मेरे घर लेके आते हैं और मैं बच्चों लोग ये सिखाता हूँ कि कैसे इनोवेशन करना है। तो मेरा जो इनोवेशन है वो उनको शेयर करता हूँ। अगर पैटर्न का मैं देखूंगा तो मेरा जो पैटर्न फाइल था वो टोटली एनआईएफ ने किया है, और मुझे उनका 2029 तक मेरे पास राइट्स है, जो मेरा मशीन है 2029 तक। इसका बाद मैं रिन्यूअल भी कर सकता हूँ। अगर ये बीच में अगर मैं किसी को या कहीं कोई कंपनी को मैं देना चाहता हूँ, मैं अपना पैटर्न बेच भी सकता हूँ, या पर्सन के हिसाब से या पूरा पैटर्न में बेच सकता हूँ। अगर कोई मेरा पैटर्न को या मेरा मशीन को कोई कॉपी बना रहा है तो मैं उनके ऊपर केस भी कर सकता हूँ। ये भी मेरे पर साइट्स है। तो ये छोटा सा मतलब मेरा एक्सपीरियंस था इनोवेशंस का, और जो पैटर्न का मेरा एक्सपीरियंस है कि आप डिजाइन भी कोई नहीं है, आपको ऐसे गूगल में काफी साइट्स है, आप कहीं आकर आपका नजदीक में या साइंस सेंटर है या कोई भी साइंस सेंटर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है, उनका पास भी जा सकते हैं। नहीं, मैंने ऑनलाइन नहीं किया, मैं टोटली उनको ऑफलाइन ही किया हूँ। बाकी मैं जब अवार्ड मिला था तभी उनको मेरा जो इनोवेशन उनको वो फाइल कर लिया था। देन इसमें कुछ पैसा चाहिए, 10,000 17,000 भी चाहिए, 5,000 का भी है। कुछ टाइम पीरियड का सबका आपका पैटर्न बन सकता है पैसा। तो मेरा पैसा जो है वो एनआईएफ ने दिया है, क्योंकि अवार्ड का साथ जो मुझे पैसा दिया था, और एनआईएफ जो है पूरा फ्री में करते हैं, जरूरत नहीं है कि आपको पैसा देना हो। एनआईएफ टोटली जितना बच्चे हैं इंडिया में, जितना सारा इनोवेशन किया है, तो वो पैटर्न आपका जो एनआईएफ है उन्होंने ही किया है। काफी उनका लॉन्ग प्रोसेस है। उनको पहले मतलब मुझे 2015 में अवार्ड मिला, मेरा पैटर्न फाइल 2015 में हुआ, और मुझे पैटर्न राइट्स मिला 2024 में। मतलब काफी साल लग गया था मुझे, 7-8 साल लग गया था फाइल मिलने में। बीच में कोरोना आ गया था, उसके पीछे बंद हो गया था। तो ये चीज़ है। और ऐसी काफ़ी इनोवेशंस है, और अगर और भी आपको जानना है तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, या पैटर्न का बारे में कहाँ पे अप्लाई करने से कैसे होगा, तो मैं अभी ये शेयर कर सकता हूँ कि एनआईएफ में काफ़ी ऐसे कंपटीशन होता है ग्रास इनोवेशन का ऊपर, तो उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। या हम लोग इग्नो में भी अभी स्टार्ट किया है, तो मैंने रिसेंटली हम लोग को जो रीजनल सेंटर प्रोग्राम है उसमें भी हम लोग इनोवेशंस ओपन किया है सर ने, वहाँ पे सुनील सर ने, इनोवेशन हब। तो उसमें भी हम लोग जाके इग्नो के जो बच्चे हैं वहाँ पे जब भी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगर कुछ गाइडेंस चाहिए वो भी मैं शेयर कर सकता हूँ, बोल सकता हूँ कि कैसे करना है, कैसे इनोवेशन वो करना है, कैसे ढूंढना है, कैसे प्रोडक्ट को डिजाइन करना है, ये सब चीज। तो अच्छा बात है, मतलब पहले हम लोग इग्नो में मतलब इतना अपॉर्चुनिटी नहीं था, अभी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं कि हम लोग इग्नो में आजकल जो बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, जो बच्चे कॉलेज नहीं जा पाते, तो इग्नो का थ्रू से भी हम लोग कुछ कर सकते हैं। ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है ये चीज हम लोग एज ए स्टूडेंट। मैं अभी स्टूडेंट ही हूँ, तो मेरे लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी कि मैं इग्नो के बच्चे हैं या मैं स्टूडेंट हूँ, तो उसमें मैं शेयर कर सकता हूँ बच्चों लोग के। एवरी वीक मैं अपना इनोवेशन वहाँ पे शेयर कर सकता हूँ, बच्चों लोग को क्लास करा सकता हूँ। अब हम क्या करते हैं, हमने दीपांकर की स्टोरी तो सुन ली, जो उन्होंने इनोवेशन के लिए कैसे उन्होंने सोचा, कैसे कंसीव किया उसको, और कंसेप्चुलाइज किया और बनाया, फिर पेटेंट उनको मिला। तो व्हाई नॉट टेक क्वेश्चंस डायरेक्टली फ्रॉम द पार्टिसिपेंट्स। दीपांकर, हम लोग क्वेश्चंस लेते हैं, आपके कुछ दीपांकर से क्वेश्चंस हो तो आप अभी पूछ सकते हैं। चैट बॉक्स में क्वेश्चंस तो मिल रहे हैं, आप और कोई क्वेश्चंस हो पूछ सकते हैं, डायरेक्ट पूछ सकते हैं। मैं भी स्टूडेंट हूँ, आप लोग भी स्टूडेंट है। अभी मनजीत ने ही हैज रेज्ड हिज हैंड, तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, बट अपना कैमरा ऑन करेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। रोशन उपाध्याय जी, आपको कोई क्वेश्चन पूछना है? आनंद दास वीलॉग्स है, सुनील कुमार कुशवाहा। Hello, good morning.
हाँ जी, हाँ जी, बताइए। हाँ मैं ये पूछ रहा था कि जैसे मैं अभी एमबीए कर रहा हूँ, जी, तो इसमें जितना भी क्लासेस है ये तो मैं यूट्यूब से ऑनलाइन कर रहा हूँ, तो कुछ प्रैक्टिकल्स मतलब क्लास ऐसे मिलते नहीं, तो क्या किया? एक मिनट, ये सेशन आपके प्रोग्राम से रिलेटेड क्वेरीज के लिए बिल्कुल नहीं है। या आप अपने अच्छा। प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर से पूछिए प्लीज। यहाँ पर आप इनोवेशन और स्टार्टअप से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, पेटेंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, क्योंकि हमने जो अपने इनोवेटर स्टूडेंट को बुलाया है वो इसी पर्पस के लिए बुलाया है और ये सेशन इसीलिए है। तो अगर आपके कुछ क्वेश्चंस उससे रिलेटेड हैं तो प्लीज आप अभी 1-to-1 में बात कर सकते हैं उनसे। ओके ओके, थैंक यू मैम। Ma'am, I am Sunil Kumar Kushwaha. Can I ask the question? जी प्लीज मैंने आपका नाम लिया था, जी पूछिए। मैम, मैं ये कह रहा हूँ कि अभी इन्होंने जिस ऑर्गेनाइजेशन में अपना पेटेंट करवाया है तो उसका पूरा एड्रेस, जैसे कि मैं भी अगर कुछ इस तरह के करूँ अगर कुछ, तो फिर उसका पूरा एड्रेस ऑर्गेनाइजेशन का ऐसा कुछ बता दे तो हमारे लिए भी सुविधाजनक होगी। ठीक है, तो हम लोग पहले तो इग्नू के स्टूडेंट है, तो हमें पहले इग्नो में अप्लाई करना चाहिए, देन एनआईएफ में जो अलग संस्था है। क्योंकि फर्स्ट हम लोग अपॉर्चुनिटी ये है कि हम लोग पहले इग्नो में स्टार्ट करें, कि इग्नो का थ्रू से हम लोग पेटेंट कराएं। तो इससे क्या हो गया, हम लोग का जो इग्नो का संस्था है उसका भी अच्छा नाम होगा, आगे भी बढ़ सकते हैं हम लोग इग्नो को लेके। तो इग्नो में भी ऐसे है कि हम लोग पेटेंट कर सकते हैं, इग्नो में भी है। आप पेटेंट फैसिलिटेशन यूनिट में मेल कीजिए अपने इनोवेटिव आइडिया को भी और बाकी भी, और हम एडवर्टाइज करेंगे तो आपका फिर उसमें हम आपको गाइड करेंगे, उधर पूरा प्रोसेस फॉलो होगा तो उस हिसाब से। डॉक्टर शर्मा। Hi, good morning, ma'am. हाँ जी Okay, वरुण, ma'am, thank you. बताइए। Ma'am, my question is that how can we contact IGNOU Center for this innovation, patent, and all this? You can send a mail to us at NCID. And can we also file for IP rights through in your center? Yes, Like I have a first you send your software idea, idea. you send us your information about your idea and innovation, and then we will follow it up. And can you tell me the details about incubation program of NCID? Is there any? Incubation program, we don't have any incubation program as for now, but we are going to launch it soon. हाँ, वर्चुअल Okay, इंक्यूबेटर हमारा है, इग्नू उद्यमी है, वर्चुअल इग्नू इंक्यूबेटर है। डॉक्टर शर्मा आप कुछ कहना चाहें? Yes, I would like to. One thing is like if you have any idea, innovation you have developed. तो जैसा दीपांकर ने कहा कि चूंकि इग्नू में एनसीआईडी मेनली इस चीज को प्रमोट कर रहा है कि इनोवेशन और स्टार्टअप को आप किस तरीके से आगे लेके जाएंगे। और जब इनोवेशन की बात करते हैं तो वहाँ कहीं ना कहीं पेटेंट या आईपीआर इशू आ जाता है, क्योंकि आपने जब कोई नया काम किया है तो उसको उसमें लगता है कि कोई ना कोई कुछ इनोवेटिव एंगल रहा होगा उसमें। और जब इनोवेटिव कोई चीज है तो जैसा दीपांकर ने सजेस्ट किया और आप सब लोग जानते होंगे कि अच्छा रहता है कि उसको अपने नाम से पेटेंट कराएं। अगर वो आपका अपना है तो अपना है और नया है तो उसको जरूर पेटेंट कराइए। और उस पेटेंट कराने में किस तरीके की मदद की जरूरत है, उसी पर्पज से ये जो पेटेंट फैसिलिटेशन यूनिट जो क्रिएट किया गया है एनसीआईडी इग्नो में, वो उसका पर्पज वही है। तो आपके पास में अगर कुछ भी इनोवेटिव है जिसको आपको लग रहा है कि उसको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के पॉइंट ऑफ व्यू से या पेटेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप चाहते हैं कि उसको अपना प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, तो पहला रास्ता ये है कि आज आप इग्नो में पीएफयू जो हमारा पेटेंट फैसिलिटेशन यूनिट है उसमें लिखिए, मेल लिखिए ncid@ignoo.ac.in। मैं अपने स्टाफ से सुजाता से कहूंगा कि चैट बॉक्स में डाल दें उसका। सुजाता अपना भी मेल डाल दीजिए और एनसीआईडी का भी डाल दीजिए। तो इफ यू हैव एनीथिंग रिलेटेड टू पेटेंट और आईपीआर तो वहां लिखिए। उसमें हम लोग क्या करेंगे कि हम अपने इग्नो के लेवल पे उसको इवेलुएट करेंगे। और इग्नो क्योंकि ऐसा नहीं कि आपने दिमाग में कुछ आया और वो सब कुछ पेटेंट हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। उसके लिए बहुत सारा एक देखा जाता है, क्राइटेरियाज होते हैं, उसके पैरामीटर्स होते हैं कि आप उस लेवल का काम है कि नहीं है, वो अलग डिफरेंट है कि नहीं है, नया है कि नहीं है, चाहे वो डिजाइन की बात हो या आपका किसी प्रोडक्ट की बात हो, जो आपका कॉपीराइट की बात हो, उन सब में ये देखना पड़ता है कि वो पेटेंटेबल है कि नहीं।
तो उसका हम अपने लेवल पे यहाँ करेंगे इग्नो में, और फिर उसके बाद में पेटेंट तो होना है गवर्नमेंट से ही, जो आपका जो इनका पेटेंट का आईपीआर का जो इनका वो है ऑफिस है, वहीं से होना है। अब उसमें अप्लाई करने के लिए हम आपको मदद करेंगे, जो फैसिलिटेट करने वाला काम है एप्लीकेशन फाइल करने में, सपोर्ट करने में, कहाँ किस तरीके से, दैट वी विल डू प्रोवाइडेड योर वर्क इज वर्थ पेटेंटिंग। ठीक है, क्लियर। अब इस काम के लिए आपको लिखना पहले हमारे यहाँ है, उसको हम इवेलुएट करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, एक तो ये है। दूसरा, मैं अभी दीपांकर से कहना चाहूंगा कि दीपांकर, यू आर रियली ए गुड इनोवेटर, और सबसे बड़ी चीज यही है कि आपके दिमाग में अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है, उसका सॉल्यूशन आ रहा है, तो यू शुड ट्राई टू एक्सपेरिमेंट इट। जैसा दीपांकर बचपन से ही, छोटी क्लास से, पांचवी साल से, 5वीं वर्ष से ही अपना करते रहे धीरे धीरे, क्योंकि उससे क्या एक माइंड सेट डेवलप होता है आपका। जब आपकी सोच ऐसी हो जाएगी कि आप कुछ नया करना चाहते हैं, आप आसपास की प्रॉब्लम्स को देख रहे हैं, चाहे उन्होंने अपनी माँ के पानी लाने की बात देखी हो या उसका और प्रॉब्लम्स को देखा हो, तो ही थॉट कि नहीं, इनका कोई सॉल्यूशन तो होना चाहिए, और उन्होंने वहां सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करी और अपने लेवल पे किया। और धीरे धीरे जब आप उस दिशा में सोचते हैं, नया करने की सोचते हैं, तो निश्चित नया होता ही होता है। तो पहला काम है आपका इनोवेटिव माइंडसेट डेवलप करना और प्रॉब्लम्स को देखना, समझना। ये कहानी बहुत इंस्पायरिंग है। बट दीपांकर, मेरी जो आपसे ये है सजेशन, क्योंकि हम पेटेंट फैसिलिटेशन यूनिट की बात करते हैं, आप ब्रीफ में ये बताइए कि जब आपने आपका डिजाइन या प्रोडक्ट जब था, तो आपने उसमें जब पेटेंट के लिए अप्लाई किया, तो क्या क्या स्टेप्स थे? पहले आपने क्या किया, फिर उसके बाद आपने क्या किया, फिर नेक्स्ट किया, और फिर आपने बताया कि 2015 में पेटेंट आपका ग्रांट हुआ, और लेकिन अभी मिला है वो। तो वो जो कुछ जो स्टेप्स रहे होंगे पेटेंट फाइल करने में, उनको अगर ब्रीफ में बताएंगे, आई थिंक तो स्टूडेंट्स के लिए काफी कन्वीनियंट रहेगा, यूजफुल रहेगा। वो जरूर बताओ। जी जी जी, ठीक। तो मैंने जब पहले बोलते ना कि आपको आइडिया होना चाहिए कि क्या आप बना रहे हैं, क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, पहले आप गूगल में सर्च करिए कि आपका अंदर जो आपने जो सोचे हैं कि मुझे ये चीज करना है, पहले आप गूगल में सर्च में कि आपने जो सोचा ऐसा है कि नहीं दुनिया में, कि और कोई किसी ने बनाया कि नहीं, अगर बनाया होगा तो आपका वाला क्या अलग है, उससे क्या डिफरेंट है, ये भी होना चाहिए कैटेगरी में। तो मेरा जो प्रोजेक्ट था, मशीन्स है बट सोलर का नहीं है। तो मैंने फिर डिजाइन किया कि मुझे जो मेरा जो मशीन्स है, मैंने पहले सर्च किया कि काफी रिसर्च पेपर देखा कि अगर सोलर थ्रेशर है तो कैसे टाइप का है, और क्या क्या वैरायटी टाइप की, काफी टाइप के हैं सोलर मशीन्स, कि आप किसी मशीन का साथ फिट कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। तो मेरा जो मशीन था वो सोलर बेस्ड था, ये मुझे अलग लगा। फिर मैंने उसको डिजाइन बनाया। अच्छा, अपना जब मैं क्लास 11 में था तब मैंने डिजाइन बनाया एक पेपर शीट में। डिजाइन ये इलेक्ट्रिकल का जो मैकेनिज्म है वो सारा चीज मैंने बनाया। बना के फिर मैंने अपने जो इनोवेशंस या अपने जो यहाँ पे जो कंपटीशन में मैंने परसिव किया, उसको लेके करने का बाद फिर जो जजमेंट था, उन्होंने भी जो साइंटिस्ट है जो एनआईएफ में, तो उन्होंने देखा कि इससे जो अलग है और क्या अलग है कि सोलर बेस है ये, और ये बहुत लो कॉस्ट बेस है। ये कैटेगरी है। अगर मशीन देखा जाए तो काफी रेट का भी मशीन्स है, वो डीजल या पेट्रोल से यूज करते हैं। तो मेरा जो सोलर बेस है, तो इंडिया में मेरे एक जो मशीन है वो सोलर बेस है। तो आप गूगल में भी मारेंगे तो क्या अलग है, तो सोलर। तो मैंने फिर ये अप्लाई किया एनआईएफ में। एनआईएफ का बाद उन्होंने क्या किया, जो साइंटिस्ट है उन्होंने टोटल पेपर बनाया। पेपर बना के कि इनका जो आइडिया है ये आईपी में उनको सबमिट किया, जब इनका जो आइडिया है वो आइडिया सोलर बेस है। अब देखेंगे अगर आपने एक फैन बनाया तो फैन में हर चीज है, रेगुलेटर सारा चीज, लेकिन फैन के अंदर कुछ ऐसा चीज आप ऐड करिए कि इसका पावर बढ़ जाए। वो जो छोटा चीज है वो मेरा सोलर था। तो आपका जो आप जब पैटेंट फाइल करने जाएंगे या काफी स्टेज है, 2-3 स्टेज है, उसका बाद आपका फाइलिंग होता है वहां पे इंडियन आईपी डिपार्टमेंट में। फिर मैंने एनआईएफ से, उन्होंने बोला कि आप राइटिंग में मुझे लिख के दीजिए कि आपका अलग क्या 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 अलग है। तो मैंने लिखा कि मेरा जो डिजाइन है ये सोलर बेस है टोटली,
और इसको आप कहीं से भी कैरी कर सकते हैं, कहीं भी लेके जा सकते हैं, स्मॉल फार्मर इसको यूज कर सकते हैं। तो वो हिसाब से मेरा पेटेंट फाइल हुआ। बाकी जो एनआईएफ ने ये कर दिया, मेरा मतलब मेरा काम जो आसान कर दिया एनआईएफ ने कर दिया है, क्योंकि उनका जो पूरा टीम होता है, साइंटिस्ट का टीम होता है, जो टेक्नीशियन है, उन्होंने ये काम मेरा जो काम इनके दीपांकर के केस में एनआईएफ ने किया, नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन भी बेसिकली ग्रास रूट्स इनोवेशन को प्रमोट करता है, आइडेंटिफाई करता है। और उसी तरीके का है ग्रास रूट्स, मतलब एक लोकल लेवल का बहुत अच्छा इनोवेशन हो तो उसमें उनको आइडेंटिफाई किया, फिर पेटेंट फाइल करने में उन्होंने मदद की और पेटेंट मिल गया इनको। वही काम हमारे यहाँ पीएफयू का प्लान है कि अगर आपका कुछ इस तरीके का है, आपने कुछ नया किया है और कैसे नया है, किस तरीके से आप उसको अलग बाकी से डिस्टिंग्विश करते हैं, अगर वो चीजें हैं तो आप जरूर अप्रोच करिए पीएफयू को, लिखिए और पीएफयू विल ट्राई टू फैसिलिटेट यू इन गेटिंग द पेटेंट रजिस्टर्ड, पेटेंट फाइल। और फिर उसमें उस सारा प्रोसेस होता है कि आपका पेटेंट अगर एक्सेप्ट हो जाता है वहाँ एप्लीकेशन, तो उसके बाद उसमें ये भी देखते हैं कि कहीं और दूसरी जगह अवेलेबल इसी तरीके का काम अवेलेबल तो नहीं ऑलरेडी। वो सब एक्सरसाइज स्टेप्स पूरा होने के बाद में देखते हैं कि नहीं और किसी का काम इस तरीके का नहीं है, देन यू आर ग्रांटेड विद द पेटेंट। और जब पेटेंट आपका हो जाता है तो अगर उसको कल आप कमर्शलाइज करते हैं, उससे बिजनेस करते हैं, उससे अगर अपना स्टार्टअप करते हैं, तो फिर वो आपका अपनी उसमें क्या कहेंगे, अपनी कमांड, अपना कंट्रोल रहेगा उसमें। कई बार खुद अपना काम नहीं करते हैं, उसको पेटेंट को सेल भी कर देते हैं कमर्शलाइज करने के लिए। उसको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी हम कहते हैं कि अगर कोई दूसरी इंडस्ट्री आपके काम को लेना चाहता है, आप नहीं डेवलप कर रहे हैं उस तरीके के प्रोडक्ट बहुत, लेकिन किसी कंपनी के साथ, इंडस्ट्री के साथ आपने बात की और उनको ट्रांसफर कर दिया, और वो आपको हो सकता है रॉयल्टी देते हैं, हो सकता है वन टाइम पेमेंट देते हैं, हो सकता है आपको पार्टनर बना लें उसमें। वो डिपेंड करता है आपका उनके साथ में किस तरीके से एग्रीमेंट करते हैं जब आप पेटेंट को उनके शेयर करते हैं। तो ये बेसिकली जो डिफरेंट स्टेप्स हैं वो हैं। तो आप कुछ क्वेश्चंस हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। रोशनी यादव ने हैंड रेज किया है। रोशनी यादव। हाँ मैम, मेरा डाउट है कि मेरे पास आइडिया है, मैंने एक यहाँ पे, मैं झांसी से हूँ, यहाँ पे मैंने राइस इंक्यूबेटर सेंटर पे अप्लाई किया था, वहाँ पे प्रेजेंटेशन दी थी, तो मेरा फर्स्ट विनर था प्राइज। तो फिर उसके बाद में मुझे पेटेंट करवाना है अब, तो मैंने अभी प्रोडक्ट तो डेवलप नहीं किया, लेकिन मेरे पास आइडिया है, इनोवेटिव आइडिया है, तो अब उसे कैसे पेटेंट करवाना है ये नहीं आ रहा है समझ में। मैं सिर्फ आइडिया दूं या फिर जो प्रोडक्ट डेवलप करके फिर देना है वहां पे, ये नहीं आ रहा है मुझे समझ में। आप उसमें आइडिया भी दे सकते हैं। अच्छा हाँ ठीक है। ठीक आपको देखिए रोशनी, क्या करना होगा कि जो आइडिया है उसको कहीं ना कहीं किसी एक फॉर्मेट में लाना पड़ेगा ना उसको, चाहे उसके बेसिस पर आप किस तरीके का, अगर प्रोडक्ट नहीं बना रहे हैं तो प्रोडक्ट की डिजाइन कैसी होगी, वो कैसे डिफरेंट होगा, वो डिजाइन का भी आप प्रोडक्ट पेटेंट करा सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उसको एक फिजिकल फॉर्म में लाइए, आप माइंड से कहीं पेपर पे लाइए, प्रोटोटाइप में लाइए, प्रोडक्ट में लाइए, वो काम आपको करना होगा। ओके सर, मेरे पास मैंने प्रेजेंटेशन दी थी तो उसमें मॉडल वगैरह सब है, मेरे पास आइडिया पूरा प्रिपेयर्ड है, लेकिन अभी उसको प्रोडक्ट एज अ फिजिकल में नहीं बनाया, लेकिन मुझे पेटेंट करवाना है। तो ये बता दीजिए आप, उसको आइडिया सिर्फ करवा सकते पेटेंट या फिर उसको प्रोडक्ट बना के भी करवाना है? मैं आई थिंक सिंपल आइडिया तो नहीं होगा, प्रोडक्ट पेटेंट नहीं होगा, आपको डिजाइन बनाना पड़ेगा उसको कुछ न कुछ उसके बेसिस पे आप, अगर आप आइडिया के, आपका कोई आइडिया है, जैसे कोई प्रोडक्ट बनाना है आपको, तो प्रोडक्ट कैसे दिखेगा, किस तरीके का वो उसमें फीचर्स मेरे पास मॉडल है उसका। तो मॉडल है तो वो तो एक नेक्स्ट लेवल का हो गया, फिर आइडिया नहीं रहा, वो तो आपका एक प्रोटोटाइप बन गया, आपने मॉडल बना लिया। तो मॉडल मतलब कैसे, ऐसा मेरे पास पेपर पे है मॉडल, रियल में फिजिकल ऐसा नहीं है। हाँ तो पेपर पे मॉडल का मतलब वही एक डिजाइन है, उस अच्छा। डिजाइन को आप हाईलाइट करिए, और मेरे ख्याल से बजाय यहाँ ज्यादा डिस्कस करने के लिए डॉक्टर सुजाता के साथ में कांटेक्ट करो और उसको डिटेल भेजो, और सी विल इवैल्यूएट एंड देन वी विल ट्राई टू सी हाउ वी कैन हेल्प यू। मैम आपको कैसे कांटेक्ट कर सकती हूँ मैं? मैंने मेल आईडी दिया है, आप एनसीआईडी या मेरे मेल पे आप अपना डिटेल्स भेज दीजिए। ओके मैम। बॉक्स में मेल हैं, मैंने प्रोवाइड किए हैं अपने मेल आईडीज। ओके मैम।
थैंक यू मैम। एक दो और भी हैंड रेज थे, और भी किसी का क्वेश्चन है तो प्लीज कम फॉरवर्ड। हाँ, अनुराधा बताइए क्या क्वेश्चन है आपका? Yeah, good morning, ma'am. Actually, I have a business idea that is related to the nutrition intake of like individual families will be taken care. So I have the business plan, how it operates and all. Can I go ahead for patent of that one? No. See, you need to formalize it. You need Okay. to come out with something innovative. आपने दीपांकर जी का शुरू में आपने सुना नहीं, उन्होंने क्या क्या बोला? एक तो आपके पास यूनिकनेस होना चाहिए, जो आप ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है उससे डिफरेंट होना चाहिए, और कुछ फॉर्मल शेप, कुछ प्रोडक्ट कुछ हाथ में होना चाहिए। आइदर इट कैन बी कंसेप्चुअल थिंग, कोई थ्योरी हो जो आपने कुछ फॉर्मलाइज किया है वो हो, या फिर कोई प्रोडक्ट हो। तो एज अ सर्विस तो आप नहीं करा सकते ना, जो आप बोल रहे हैं वो मुझे सर्विस लग रही है। Yeah. Okay. So you cannot go for repeated Anurag. service. Yeah. Yeah. In Anuradha case. and Yeah. Yes. Anuradha and others, I would like to inform you that presently Mm-hmm. IGNOU has invited applications registration for business plan competition. Okay. So. और उसमें बिजनेस, जैसे आपका अगर बिजनेस आइडिया है, अगर आप कर रहे हैं, तो हम अभी इस समय मतलब दिस इज अ डिफरेंट थिंग, पेटेंट से अलग है। मैं जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन कि अभी प्री इंक्यूबेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इग्नो प्री इंक्यूबेट करता है, उसके बाद जो हमारा इंक्यूबेटर जो हम सेटअप कर रहे हैं उसमें वी विल इंक्यूबेट दी थिंग्स आल्सो, आपके प्रोडक्ट को, आइडियाज को वो अलग है। लेकिन प्री इंक्यूबेशन की स्टेज पे अभी हमने इनवाइट की हुई है एप्लीकेशंस फॉर दी बिजनेस प्लान। उसमें अगर आपका आइडिया है तो वो आप रजिस्टर करिए। मैं कहूँगा अपने कोलीग से कि यहाँ मेल उसका लिंक उसका भी डाल दें, जो कि बिजनेस प्लान कंपटीशन के लिए अप्लाई करने के लिए, और उसमें रजिस्टर करना अभी आपको। फिर हम उसमें आपको ट्रेनिंग देंगे कि किस तरीके से आपको आइडिया को बिजनेस मॉडल कैनवास में कन्वर्ट करना है, किस तरीके से बिजनेस प्लान बनाना है, और किस तरीके से बिजनेस प्लान को बैंकेबल बिजनेस प्लान बनाना है। ये पूरी ट्रेनिंग होगी अगले 2-3 महीने में हमारी सारा। तो उसमें ये दिस इंफॉर्मेशन इज टू ऑल ऑफ यू। जिस किसी के भी पास में अगर कोई इनोवेटिव आइडिया है, बिजनेस आइडिया है, तो आप उसमें पार्टिसिपेट कीजिए, और पार्टिसिपेट करेंगे तो ट्रेनिंग भी मिलेगी, और अगर जरूरत पड़ी तो हम आपको पेटेंट करने में, कॉपीराइट में या ट्रेडमार्क में वहाँ उस तरीके से मदद भी करेंगे। ठीक है? Yeah, thank you, sir. And one more thing, like prebiotic product development, it is like I'm working on that. Once it is done, so should I contact you through mail and get the approval and patent all the process through you only, or how it works, sir? Yes. Yes. Once you have come out with some product, then you can send a mail to us. We will put it in process and it will be evaluated, and then we will guide you how to go about for patenting. Okay, thank you, ma'am. So this is only so product also I need to send it to you, right? You don't have to send us the product, but you have to send us the details, what your product is and how it is unique and innovative. Okay. So only product details I need to send it through mail. So post that we can proceed. You reach out to us through mail. Rest of the details we will get back to you, and then you can proceed. Yeah. Thank you. Any other questions? Since there are no more questions, yeah, Arun Sharma has raised hands. Arun Sharma, यस मैम, गुड मॉर्निंग मैम। good morning. मैम क्वेश्चन ये था कि मतलब क्या मल्टीपल्स आइडिया को हम शेयर कर सकते हैं इनोवेशन में, या फिर मतलब एक ही आइडिया पे उसी पे वर्क करना है? तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन आ रहा था, बस इसी के बारे में आपसे जानकारी चाहिए। क्या कंफ्यूजन है आपको? जितना आइडियाज चाहिए, इट इज अप टू यू, बट आपको ये सोचना है कि उस आइडिया को आगे कैसे लेके जाना है और उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। पूरा प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, सर्विस बनाना चाहते हैं,
और कौन सा आइडिया वाइबल है, मार्केटेबल है, ये भी देखना है, और किस आइडिया को पेटेंट करा सकते हैं, है ना। ये सारी चीजें आप ध्यान में रखिए, और ये आप और कंसिडर कीजिए कि आपके पास रिसोर्सेज कितने हैं। आप साइमल्टेनियसली 10 आइडियाज पे वर्क कर सकते हैं या नहीं, दो इट इज नॉट पॉसिबल, बट ये आपको अरुण, समझना होगा परिस्थिति, इस सिचुएशन को। जी शर्मा जी। अरुण, मैं यहाँ कहूंगा कि देखिए, जब आपसे मंगाए हैं आइडियाज और उसमें कंपटीशन हो रहा है, अगर आपने 5 आइडियाज भेज दिए तो निश्चित है हम उनमें से बेस्ट फूड को, वाला तो हमारा हो गया। रोहनी काइंडली हाँ। म्यूट योरसेल्फ। तो आप 5 भेजेंगे तो निश्चित है उनमें से कोई एक बेस्ट हम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है ना। बाकी 4 तो हम रिजेक्ट कर देंगे, नहीं लेंगे। लेकिन अब हो सकता है कि उन 5 में से जिसको हमने सेलेक्ट किया वो आपके हिसाब से बेस्ट ना हो। तो बेटर ये है कि आपके दिमाग में अगर 5 आइडियाज आ रहे हैं तो उनको पहले अपने आप स्क्रीन कर लो, इवेल्युएट कर लो कि मेरे हिसाब से कौन सा बेस्ट है जो मुझे सबमिट करना चाहिए और जिस पे मैं आगे काम करना चाहूंगा, ठीक है। आपके दिमाग में आइडियाज आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। फिर कोई और अपॉर्चुनिटी आएगी उसमें दूसरे आइडिया को दीजिए, लेकिन एक बार में अगर एक को देते हैं तो आप अपने आप में श्योर हो जाएंगे कि हाँ ये मेरा बेस्ट है और इस पे मैं काम करना चाहूंगा। तो वो कम से कम आपको कॉन्फिडेंस देगा कि हाँ ये है। अदरवाइज तो फिर आप वही डाउट में ही रहेंगे, इस पे काम करूं या इस पे नहीं करूं। उससे बचने के लिए अपने आप भी थोड़ा सा सेल्फ असेसमेंट जरूरी है, एंड दैट वी वुड लाइक टू सजेस्ट इट। ओके, ओके सर, थैंक यू। हेलो सर। हेलो ओला जी, अच्छा प्रदीप कुमार, यू वांट टू आस्क, यू मे प्लीज। हमें केवल आइडिया देना है कि सॉल्यूशन भी देना है साथ साथ में? आइडिया देना है हमें या सॉल्यूशन भी देना है, ये पूछ रहा हूँ। अभी जो बिजनेस प्लान कंपटीशन हो रहा है उसमें अगर आपके पास में अभी तो उसमें आइडिया भी नहीं देना है, अभी तो आपको रजिस्टर करना है। अगर आपके दिमाग में है कि आप स्टार्टअप में जाना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, तो आप उसके लिए रजिस्टर करिए। और रजिस्टर करेंगे तो हम आपको पहले अभी उसके लिए तैयार करेंगे कि आप किस तरीके से अपने आइडिया को आगे बढ़ाएंगे और कैसे फिर सारा अलग अलग तरीके की ट्रेनिंग देंगे, तो वो एक अलग चीज़ है। तो अभी आपको आइडिया अपने दिमाग में सोच लीजिए कि इस पर मुझे काम करना है, ठीक है। यहाँ अच्छा रहेगा अगर पेटेंट या पेटेंट से रिलेटेड इश्यूज के बारे में बात करेंगे तो आज का सेशन बेसिकली पेटेंट से रिलेटेड है। तो इस पर अगर कोई क्वेश्चन है तो वो पूछिए। सर इसका नेक्स्ट बार कब होगा, मीटिंग कब होगी? क्योंकि मैं लेट ज्वाइन किया था काफी, इस सेशन मीटिंग को काफी लेट ज्वाइन किया था मैंने, इसलिए मैं आधी बात सुन नहीं पाया था। अगली बार से टाइम से ज्वाइन करिए और तब अच्छा रहेगा। ये होती रहती है, बीच बीच में हम इन्फॉर्म करते रहते हैं और इनका कोई ऐसा नहीं है कि कब होगी, जब भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है उसके हिसाब से ज्वाइन करिए। ठीक है, थैंक यू सर। भोला, यू हैव अ क्वेश्चन? नमस्ते मैम। नमस्ते सर। सर जैसे हम कोई प्रोडक्ट बाजार में उतारते हैं और उसको पेटेंट करवा लेते हैं, तो उसमें कोई एडिशनल चीज जोड़ के कोई दूसरा व्यक्ति उसको पेटेंट करा लेगा, तो ये तो उल्लंघन नहीं हुआ ना पेटेंट का? नहीं, ये तो नहीं होगा क्योंकि आपने दूसरा कुछ किया ना, नया किया। आपका जो पेटेंट होगा उस नई चीज का ही होगा बेसिकली। सर उसमें जैसे प्रोडक्ट, हाँ जी उनका और मेरा प्रोडक्ट सेम है, लेकिन उन्होंने एक एडिशनल चीज जोड़ दी, तो वो तो उल्लंघन नहीं हुआ? नहीं आ रही है सर उन्होंने एक एडिशनल चीज जोड़ दी प्रोडक्ट में, तो वो पेटेंट का उल्लंघन तो नहीं हुआ? इसको बोलते हैं कंपटीशन। तो आप पहले आपका जो नंबर ऑफ जो प्रोडक्ट्स है वो एक झटका में डायरेक्ट मार्केट में मत लाइए आप। मतलब आपका पास आइडिया है, किसी को शेयर मत कीजिए। मतलब आप जब तक आपके पास पेटेंट का फाइल ना आए तब तक, ठीक है। इसका भी ऐसे काफी हुआ है कि आपने कुछ बनाया कि इससे थोड़ा सा अलग कर दिया, वो भी उसका नाम में वो पेटेंट हो जाएगा। ये कंपटीशन, ये अब इंडिया में अभी ये कंपटीशन काफी चल रहा है। आप देखिए चाइना में अच्छा काफी प्रोडक्ट कॉपी करके अच्छा प्रोडक्ट कम रेट में सेल कर रहे हैं। जी सर। ठीक है, तो आप पहले आपका जो आइडिया है, नहीं, बेसिकली पेटेंट में देखा जाता है कि आपका क्या नयापन है, आपका कंट्रीब्यूशन क्या है, व्हाट इज इनोवेटिव इन दैट। क्योंकि पेटेंट में अगर आप मान लो फॉर एग्जांपल पेन का ले रहे हैं, पेन है, कोई डिजाइन किसी ने किया है, किसी का दूसरे तरीके का है, अलग अलग तरीके के पेन्स हैं, वैरायटी ऑफ डिजाइन ऑफ पेन्स, उनके अलग तरीके के
इंक्स हैं, अलग तरीके के उनके टिप्स हैं जो निप्स होती हैं। अब उनमें से वो किस चीज को आप हाईलाइट करके पेटेंट करना चाह रहे हैं वो आपको हाईलाइट करना पड़ता है, उसमें वही चीज पेटेंट होती है। पेन तो पेन हो गया, लेकिन पेन में क्या चीज आप पेटेंट कर रहे हैं वो दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। ओके, तो उसमें सर प्रोडक्ट में अलग अलग चीज का भी पेटेंट करवा सकते हैं, जो हाँ डिजाइन हो बिल्कुल गया, बिल्कुल उसका बिल्कुल होता है। क्वालिटी हो गई हाँ, उसमें, डिजाइन हो गया, उसका वर्किंग हो गया, या इस तरीके की चीजें उसकी होती क्वांटिटी हो गई सर। हैं। तो ये आप देखिएगा, जब आपके दिमाग में आ रहा है तो उसको फिर एक्सपर्ट्स के साथ थोड़ा बात करके उसको और देखा जाएगा कि उस जो आप सोच रहे हैं कि वो पेटेंटेबल है कि नहीं, जो आप सोच रहे हैं कि नहीं। ठीक है, ओके सर। जयप्रकाश जी, आपका क्वेश्चन। Yes, ma'am. Yeah. जयप्रकाश है। Hi, sir. हाँ, यस। So, मेरा क्वेश्चन पेटेंट से रिलेटेड था। So, by the time जब भी आइडिया आता है, आई डू गूगल एंड सर्च एंड ऑल्सो कहीं ना कहीं वो इनोवेट हो चुका होता है या कुछ एक फेज में रहता है। So, ऐसा लगता है जैसे कि टाइम लैप्स कर गया या वी मिस्ड आउट समहाउ। So, उसको कैसे ओवरकम करें एंड लाइक is there any way to search or like patent directory है कहीं पे जहाँ पे जाके चेक कर सकें before starting the innovation itself? नहीं, वो तो है, सब आप सर्च भी करिए, सर्च तो करना ही होता है, पेटेंट डायरेक्टरी भी है कई सारी जहाँ पे करना। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप अगर दिमाग में आ रहा है तो तुरंत उस पर एक्ट करिए ना। व्हाई डू यू वेट फॉर लॉन्ग? जल्दी काम करिए उसमें। ये सर्च तो बहुत सारे साइट्स अवेलेबल हैं, अगर हम देख के उनको आपके साथ शेयर भी कर देंगे बाद में। अगर आपको ये देखना है कि पेटेंट है या नहीं, आप पेटेंट डेटाबेस में जाइए जो ऑनलाइन अवेलेबल है। सबसे पहला काम यही करना होता है, यू मेक अ सर्च इन द पेटेंट डेटाबेस कि उसके रिलेटेड कौन कौन से पेटेंट्स इशू हो चुके हैं, क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं जो पेटेंट हो चुके हैं, तो उससे आपको एक थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। सेकेंड थिंग इज, इफ you want more expensive search, the best thing is go to a science center, उनके पास और databases रहते हैं, डिटेल में वो आपको साइंटिस्ट आपको गाइड कर सकते हैं इस बारे में, and even patent office. But on your own if you want to do the research, आप नेट से गूगल पे तो रिसर्च करेंगे ही, बट पेटेंट डेटाबेस में सर्च कीजिए। Okay, sure. Thank you. I have one idea, so I'll share you with email. And rest, how to ensure that you work on your idea fast, that I will ask Dipankar to suggest you, because he is the innovator student, the speaker for today. दीपांकर, आप इनको सजेस्ट कीजिए कि अगर आपको कुछ इनोवेशन या कुछ ऐसा आइडिया आ रहा है तो क्या करना चाहिए, ताकि, और कंपटीशन तो बहुत है मार्केट में, यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट। अगर आपके पास आइडिया है तो उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने की ट्राई कीजिए, प्रोडक्ट में, और जितना जल्दी हो पाए। कि नहीं मैं आज आइडिया सोचा हूँ कि चलो ठीक है आराम से करेंगे 1 साल, बट 1 साल 1 दिन आपको जाएंगे तो 1 दिन में नया प्रोडक्ट आ जाएगा मार्केट में, आपसे भी अच्छा एडवांस, ये भी है। तो अगर आइडिया है साथ साथ उसके ऊपर काम कीजिए, रिसर्च कीजिए। कि रिसर्च पेपर, काफ़ी ऐसे रिसर्च पेपर है आप देख सकते हैं, पैटर्न में जाके देख सकते हैं, देखिए कि ऐसा कुछ है कि नहीं। अगर नहीं है तो तुरंत आप काम करना स्टार्ट कर दीजिए, बिल्कुल वेट नहीं करना। अभी का टाइम में, ये जनरेशन में तो वेट मत कीजिए। पहले एक टाइम था जब इतना पैटर्न या इनोवेशंस का बारे में नहीं पता था, अभी गवर्नमेंट ने ऐसा कर दिया कि इनोवेशन, पैटर्न, ये सब चीज़ बहुत एडवांस हो गया, तो अभी तुरंत करना चाहिए मेरे हिसाब से। इसके बावजूद भी अगर इफ यू आर वर्किंग ऑन एन आइडिया एंड यू गेट टू नो दैट देयर इज सम प्रोडक्ट व्हिच इज लॉन्च्ड और अवेलेबल इन द मार्केट, somebody else is working on that idea, the best thing is not to drop that idea, क्योंकि आपने उस पे इतना काम किया है। आप और उसमें सोचिए कि आप अपना इनोवेटिव एंगल लगा के उसको कैसे अपग्रेड करेंगे, बिकॉज यू हैव टू स्टे अहेड ऑफ द मार्केट। ये तो प्रोडक्ट के कमर्शियलाइज हो जाने के बाद भी आपको करना रहता है ना, तभी तो आप बिजनेस में होंगे, स्टार्टअप होगा, कमर्शियलाइज प्रोडक्ट होगा, लॉन्च हो जाएगा, तो भी यू हैव टू कीप इनोवेटिंग टू स्टे अहेड ऑफ द मार्केट। तो ये नहीं है कि आप उस चीज को पूरा ड्रॉप कर देंगे। अगर आपने उसके ऊपर काफी रिसर्च किया है, टाइम दिया है, सोच रहे हैं और पैशनेट है उसको लेकर, तो आप सोचिए कि इसको क्या नया रूप दूं कि इससे भी बढ़िया हो, ये आपके ऊपर है।
now it is time now. अभी और क्वेश्चंस भी नहीं है तो हम इस सेशन को वाइंड अप करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक दीपांकर फॉर बीइंग हियर. Dipankar, it was really a pleasure listening to your innovative story, innovation story, I would say. आपकी जो जर्नी थी और कैसे आप पेटेंट तक उसको लाए. All the best to you for your future endeavors also, and we would like you to keep associated with NCID. और हमारे सारे participants को we are thankful to you for joining in. And if you have any more queries, you can always reach out to us at ncid@ignou.ac.in. थैंक यू मैम इनविटेशन के लिए कि मैं कुछ शेयर कर पाया मेरा अपना इनोवेशंस का या पैटर्न का. थैंक यू सो मच मैम. And before final concluding, I would like to thank Director NCID, Dr. O.P. Sharma, for his cooperation and support. He's always guiding the students and interacting with them. And also my colleagues from NCID, Dr. Jyotsna Dikshit and Dr. Monica Das. And the back end support also, not to forget them, because without them this session would not be possible. Pawan and all. Thank you so much. थैंक यू मैम. थैंक यू ऑल ऑफ यू. डॉक्टर शर्मा, आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल बहुत बढ़िया, अच्छा सेशन है. दीपांकर, keep it up. Thank and you, I sir. think it was very inspiring to all the students, and they will also come up with new and innovative ideas. Do think innovatively and come out with the innovative products and services for the society. Thank you very much. Thank you sir. Thank you so much. Thank you. Thank you.